معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ریاست اس لانگ مارچ جو اسلام آباد میں دھرنے کی شکل میں موجود ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کس طرح براہ راست طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ بلوچ خواتین اور بچوں پر تشدد کر کے انہیں اسلام آباد سے بے دخل کرنے کی کوشش ہو، یا سینکڑوں بلوچ طلباء، طالب علم اور نوجوان جو اسلام آباد میں لانگ مارچ کے شرکاء کو ویلکم کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، ان پر شدید تشدد اور ان کی غیر قانونی گرفتاری اور جیل سے جبری گمشدگی، یہ تمام واقعات بلوچستان کی کسی گاؤں یا دیہات میں نہیں بلکہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہوئے ہیں اور دنیا اور کیمرے کے سامنے ہوئے ہیں، جس کے بعد اب کسی بھی ذی شعور انسان کو بلوچوں پر ہونے والے ریاستی جبر اور تشدد کے حوالے سے کسی شک کو شبے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہزاروں میل دور سے شہید بالاچ اور لاپتہ افراد کے لواحقین اس امید کے ساتھ اسلام آباد پہنچے کہ ریاست شاید بلوچستان میں دیکھ نہیں پا رہی ہو، لیکن اسلام آباد آمد پر ریاست نے جس طرح دشمنوں جیسا سلوک اور رویہ رکھا اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بلوچستان کے لوگ ریاست کے شہری نہیں ہیں، جنہیں پرامن احتجاج سمیت اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ ریاست کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خواتین اور بچوں پر تشدد، لاپتہ افراد کے لواحقین کو جیل میں ڈالنے سے لے کر جس طرح رات گئے سوئی ہوئی خواتین پر حملہ کرتے ہوئے انہیں راسا کرنے اور ساؤنڈ سسٹم کو چوری کرنے تک یہ ثابت کرتے ہیں کہ ریاست بلوچوں کے خلاف ہر طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے۔ معزز صافی حضرات، جب تشدد، لاٹھی چارج، واٹر کینن، جیل، تذلیل اور دیگر ذرائع لانگ مارچ شرکاء کی جدوجہد کو سبوتاژ کرنے میں ناکامیاب ہوئے تو انہوں نے صافی نما ریاستی اہلکاروں سے لواحقین کو ٹارچر کرنا شروع کیا۔ بہت سے ایسے صحافیوں کو اس نیت سے بھیجا تاکہ لانگ مارچ کے شرکاء کے حوالے سے ایک جھوٹا بیانیہ قائم کیا جائے اور اس مقصد کے لیے جبری گمشدگی کے شکار افراد کے لواحقین اور دیگر سیاسی کارکنان پر ریاستی بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تاکہ ریاستی دہشت گردی، قتل و غارت گری، جبری گمشدگی سے توجہ ہٹا کر ریاستی بیانیے کو سامنے لایا جائے جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نفسیاتی ہراسگی کے زمرے میں آتا ہے۔ بلوچستان میں اس وقت ایک ہی حقیقت پایا جاتا ہے اور وہ حقیقت بلوچستان میں لوگوں کی نسل کشی، جبری گمشدگی، وسائل کی لوٹ مار، ڈیتھ اسکواڈ، ریاستی فورسز کی دہشت گردی، غیر قانونی چھاپے، قتل و غارت گری، بلوچوں کی سیاسی، انسانی، معاشرتی، معاشی استحصال اور ریاستی اداروں کے خلاف کے ظالمانہ اقدامات ہیں۔ اس وقت پورا بلوچستان اس ریاستی جبر، تشدد، بربریت اور درندگی کے زد میں ہے اور آئے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے جب ریاست پرامن مظاہرین کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں میڈیا اور انٹرنیٹ کی غیر موجودگی میں ریاست کا رویہ کیسا ہوگا۔ اسلام مارچ کے حق میں مکران سے لے کر ڈی جی خان اور کراچی، سندھ کے درجنوں علاقوں میں بلوچوں نے ہزاروں کی تعداد میں روڈوں پر نکل کر ریاست پر واضح کر دیا ہے کہ بلوچ قوم مزید ریاستی دہشت گردی قبول نہیں کرے گی اور اس جبر کے خلاف مزاحمتی عمل میں برسر پیکار لاپتہ افراد کے لواحقین، ریاستی جبر کے شکار لوگ اور سیاسی جہدکار یکجا ہیں۔ معزز صافی حضرات، ریاست کی سنجیدگی اور مسائل کے حوالے سے مذاکرات کی انتہا یہ ہے کہ جہاں ایک جانب پریس کانفرنس کر کے کہا جاتا ہے کہ مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کر کے مسائل کو حل کیا جائے گا، تو دوسری جانب مظاہرین کو گرفتار کرنا، اغوا کرنا، اٹھانا، تشدد کا نشانہ بنانا اور ہراساں کرنے کا عمل شدت سے جاری ہے۔ پاکستان کے انصاف کا اعلیٰ ادارہ ہائی کورٹ میں بھی بھرپور جھوٹ بولا گیا۔ 2 دن پہلے میڈیا میں اسلام آباد پولیس نے تمام طلباء کی رہائی کی جھوٹی خبر چلائی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام طلباء اب تک بازیاب نہیں ہوئے ہیں، جو ریاست کی غیر سنجیدگی کو واضح کرتی ہے۔ جبکہ ایک طرف جہاں مذاکرات کرنے کی باتیں ہوتی ہے تو دوسری جانب رات گئے سوئے ہوئے مظاہرین کو ہراساں کرنے کے لیے بندوق سے حملے کیے جاتے ہیں، جو ہمارے ان خدشات کو حقیقت میں بدل دیتی ہے کہ ریاست بلوچستان کو ایک کالونی کی طرح ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریاست کو 3 دن کی الٹیمیٹم لاپتہ طلباء کو رہا کرنے کے لیے دیا گیا تھا، جو اب تک پورا نہیں ہوا ہے اور اب تک تمام طلباء رہا نہیں کیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ معزز صافی حضرات، تربت سے میلوں دور لاپتہ افراد کے لواحقین، ریاستی جبر کے شکار عوام اور سیاسی کارکنان اسلام آباد اس لیے آئے ہیں کہ انہیں انصاف مل سکے، لیکن ریاست نے جو رویہ دکھایا وہ کسی بھی طرح ایک ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ پیش آنے والا رویہ نہیں، بلکہ آقا کا اپنے غلاموں کے ساتھ پیش آنے والا رویہ تھا۔ تحریک کے مطالبات پہلے دن سے واضح ہے اور انہی پر تحریک قائم ہے۔ ریاست کو درج ذیل مطالبات پر اگلے 7 دنوں کے لیے مذاکرات کا وقت دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی سربراہی میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا جائے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور ماروائے عدالت
अलाकतें खत्म करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की मौजूदगी में मुआहदे पर दस्तखत किया जाए। तमाम जिबरी तौर पर लापता किए गए बलोचों को खास तौर पर जिनके अहल खाना इस धरने में शामिल है को फौरी रिहा किया जाए। बलूचिस्तान में मामला अदालत कत्ल के सरगना अदारा CTD पर पाबंदी आयद की जाए और रियासी एजेंसियों के सरबराही में चलने वाले डेथ स्क्वाड्स को खात्मा किया जाए, जिसकी तहरीरी अलामिया जारी किया जाए। जिबरी तौर पर लापता अफराद को जाली मुकाबलों में कत्ल करने का एतराफ़ किया जाए, जिसके लिए वजारत दाखिला की जानिब से एतराफ़ी खत जारी किया जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए जिसमें तमाम मुतासिरीन के नाम शामिल हो और इसके साथ ही पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ तमाम जाली FIR वापस लिए जाएं। अगर दर्ज बाला मुतालबात पर रियासत ने संजीदा मुज़ाकरात नहीं किए और संजीदगी नहीं दिखाई और जिस तरह उन्होंने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुजाहिरीन के साथ रवैया रखा हुआ है और ये सिलसिला जारी रहा, तो एक हफ्ते के बाद तहरीक की जानिब से रियासती नस्ल खुशी की पॉलिसियों और बलूचिस्तान के साथ कानूनी जैसा सलूक करने पर रियासत के तमाम अदारों से वाजिया मायूसी का इजहार करके हम अपना मुद्दा बलोच अवाम के सामने रखेंगे और फिर फैसला अवामी कुव्वत करेगी। इस एक हफ्ते में रियासत को बलोचों पर वाजिया करना होगा कि वो बलोचों की नस्ल खुशी के हवाले से कितना संजीदा है, तो इन्हें अमलन साबित करना होगा और बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगियों, मारवा अदालत कत्ल समेत तमाम किस्म की इंसानी हुकूक की पामालियों और गैर कानूनी इक़दाम फौरन बंद होने चाहिए। अगर रियासत अपने कॉलोनियल माइंड सेट को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर फैसला बलोच अवाम के कोर्ट में होगा। शुक्रिया। सवालात अगर कोई करना चाहे तो कर सकते। आज आपको वैसे पहले दिन से लेके आज तक कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए थे? जब से ये धरना शुरू हुआ है? 8-5वां दिन है। इससे पहले जो यहाँ पे बैठे हुए थे स्टूडेंट वो भी साथ 1 महीना हो चुका है। उसमें क्या बातें सामने आई? गुज़श्ता रात हमारे मुज़ाकरात नहीं हुए। ADC साहब ने जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि हम अपनी इंतजामिया लाएंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे। हमने यही कहा कि हमें आपसे सिर्फ यही चाहिए कि आप हमें और तंग ना करें। हमारा मुद्दा आपके साथ नहीं है। हम इस्लामाबाद पुलिस के साथ हमारी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस जो है ना दूसरों के अहकामात पर जो है ना इस धरने को सबूताज करने की कोशिशों को रोके, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज सुबह फिर ये इस्लामाबाद में पहली जगह कोई एहतजाजी धरना नहीं हो रहा है। इससे मेरे ख्याल से पुरअमन एहतजाजी धरना कभी इस्लामाबाद में हुआ ही नहीं है, जहाँ औरतें और बच्चे खामोशी से अपना मुद्दा आप लोगों को सुनाते हैं, जहाँ पे जो है ना कोई नाराबाजी नहीं होती है। लेकिन इस पुरअमन एहतजाज को सबसे पहले बैरियर लगा के बंद किया गया और अभी जो है ना, और मैं ये भी वाजिया करना चाहती हूँ कि वो लोग जो हमलावर हुए थे वो स्पीकर चोरी करने नहीं आए थे, वो औरतों को हरासा करने आए थे, डराने आए थे। और एट द मेन टाइम जब यहाँ मर्द भी बैठे थे और औरतें भी बैठी थी, जब वो खड़े हुए और उन्होंने मुजम्मत दिखाई तो उनके हाथ में कुछ नहीं लगा और उन्होंने उस अराजकी को स्पीकर चोरी का नाम दे दिया। और सबसे पहले तो ADC साहब को उसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अभी तक ये भी कहा जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस ये कह रही है कि आप लोगों ने खुद उठाया है, और सुबह ये अमल हुआ कि हमें जो है ना हमारा प्रोग्राम सिर्फ इसलिए डिले किया गया कि हम आपको प्रोग्राम करने नहीं देंगे, मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर है। और मुझे ये नहीं पता है कि ये वर्बल ऑर्डर्स कौन जारी कर रहा है, क्योंकि जब हमने ऑर्डर्स का कहा तो हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया गया। किस कानून के तहत जो है ना हम यहाँ मुजाहरा कर रहे हैं, हम सिटिंग कर रहे हैं, हमें बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, कितने लोग हैं जो अब तक बाजियाब नहीं हुए, अभी तक गिरफ्तार हैं, और क्या वो इस्लामाबाद पुलिस की ही तहवील में हैं या फिर अडियाला जेल में वो जुडिशियल रिमांड पा रहे हैं? 32 लोग हैं अभी तक, और उनमें से बाद जैसे तलबा है जिनके एग्जाम भी हो रहे हैं और वो उनको एग्जाम भी नहीं दिया गया है, नहीं देने दिया जा रहा है, वो है तो अडियाला जेल में ही है। लेकिन मसला ये है कि जब इस्लामाबाद पुलिस के IG, इनके ADC और जो मुज़ाकराती टीम आई थी, जब उन्होंने एतराफ़ किया कि गिरफ्तारियां गलत थी, तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया है, तो उनको किस कानून के तहत रखा गया है उसके मुताबिक तो सारे FIRs को खत्म होना चाहिए, सारी FIRs को क्वाश करना चाहिए। लेकिन ये डिलेट एक्टिविटीज कराकर जो है ना इंतजामिया जो है ना क्या पैगाम देना चाहती है हमें, किस तरह जो है ना वो हमें नफ्सियाती तौर पर और ज्यादा डिप्रेस करना चाहती है या हमारे नफ्सियात के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। थैंक यू। आपने हुकूमत के सामने आपने मुतालबात रखे होंगे, कौन से आपके ऐसे नुकात हैं जो हुकूमती जो टीम है वो मानना नहीं चाहती या वो मानने के लिए तैयार नहीं? देखिए, मुतालबात पर तो अभी तक डिस्कशन हुआ ही नहीं है। हमारे सारे के सारे मुतालबात इम्पोर्टेंट है, एक भी ऐसा मुतालबा नहीं है जिससे हम पीछे हटने वाले हैं। और हमने DC साहब से यही भी कहा है कि हम रियासत की जानिब से जो भी हमसे बात करने आएगा हम उससे भी बात करने के लिए तैयार है। आप मसले को देखिए कि
लापता अफराद के मसले का ये पहला वो नहीं है। इससे पहले शहबाज शरीफ की टीम के साथ मुज़ाकरात हुए 2022 में, और उससे पहले यहाँ पे लापता अफराद के लवाकिन 2021 में बैठे। उन्होंने 10 दिन के बाद जो है ना इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए। तो जब हेड ऑफ द स्टेट भी इस मसले को हल नहीं कर सका, तो इसके बाद मेरे ख्याल से हमें कोई एतराज नहीं है। जो भी आए हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर हम किसी झूठी तसल्ली पर पीछे नहीं हटेंगे, और मुज़ाकरात के नाम पर हम किसी भी कमेटी, किसी जुडिशल उसको मानते ही नहीं है। हमारे सारे मुतालबात, आप जो भी डिबेट करना चाहे, लॉजिक करना चाहे, यहाँ पे मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर साफी हजरात इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। हमने जो मुतालबात लिखे, हमने जो बयानात जारी किए, आप जाएं बलूचिस्तान में तहकीक करें क्या हमारे मुतालबात गलत है, क्या डेथ स्क्वाड नहीं है, क्या डेथ स्क्वाड के लोगों को आज भी पार्टी की टिकटें नहीं मिली हैं, क्या वो जो है ना इलेक्शन कास्ट नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो CTDA क्या वो मशकूक नहीं है, और उसने कितने एक्स्ट्रा जुडिशियल किल किए, और ये लापता अफराद के लवाकिन क्या ये झूठ है? इनमें से एक भी ऐसा मुतालबा नहीं है जो गलत हो। हम आपसे यही कहते हैं कि जाएं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे मुतालबात के एक एक शक को आप जो है ना उस पर तहकीक करें और बताएं। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। पहले अगर आप लोगों ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई वो अलग बात है, बलूचिस्तान दरगुजर करने वाले लोग हैं, लेकिन अब जब ये तहरीक यहाँ आई है तो मैं आप सबसे यही वो करती हूँ कि सहाफी होने का वो जो एक जिम्मेदारी होती है उसको पूरा करें। हमारे तहरीक के मुतालबात सिर्फ इन लोगों के नहीं है, हमारे तहरीक के मुतालबात पूरे बलूचिस्तान के मुतालबात है। बलूचिस्तान में होने वाले जीनोसाइड को जो है ना लीगल करार नहीं दिया जाए। थैंक यू। अच्छा, कल इमरान भाई आए थे, उन्होंने हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगी है, उनके साथ आपकी क्या बात हुई है वो जरा बताओ। ड्यूरिंग प्रोटेस्ट कितने तलबान की गिरफ्तार किए गए यहाँ? ड्यूरिंग प्रोटेस्ट 380 से अबव थे। 380 से अबव जो है ना उनमें खवातीन भी मौजूद थे। अगर हम सारा लगाएं तो उनमें से आपको देख के सबसे पहले तो झूठ उस दिन करा दिया गया कि किसी औरत को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद जो हुआ वो पूरे इस्लामाबाद शहर ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद ये झूठ गोई की गई कि किसी तलबा को जो है ना अरेस्ट नहीं किया गया। फिर जो है ना फिर ये कहा गया कि सारे तलबा रिहा हो चुके हैं। फिर ये कहा गया कि डॉक्टर ज़हीर जो है ना उनकी तवील में नहीं है। तो ये तमाम वो झूठ है, वो हकीकत है। मेरे ख्याल से वो झूठ नहीं है, वो रवैया है। ये इस्लामाबाद पुलिस नहीं है, ये रियासत का ऑर्डर है बलोचों के खिलाफ कि बलोचों को ऐसे ट्रीट करना है। ये वो बिहेवियर है। पहले जब कि आपने कहा कि 7 दिन का वक्त आप देते हैं, अगर उन 7 दिनों में आपके मुतालबात नहीं पूरे होते या जो आप बात कर रही वो नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे? आपने कहा कि हम अपना फैसला बलोच अवाम को देंगे। बिल्कुल, हम यहाँ से जो है ना फिर अपना फैसला बलोच अवाम को देंगे और उनको ये बताएंगे रियासत के पास बलोच नस्ल खुशी को खत्म करने और इन माओ और इनकी पुकार सुनने के लिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें दे सके। जाहिर सी बात है ये अभी का मुतालबा नहीं है, ना ही इसको 35 दिन की तहरीक के साथ जोड़ा जाए। ये दहाइयों का मसला है। इस पर मुतअद्दिद बार लॉन्ग मार्च किए गए हैं। मुतअद्दिद बार एक भी दिन वहाँ पे नहीं जाता है जहाँ कोयटा प्रेस क्लब में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो, जहाँ कोयटा में जो है ना पूरे बलूचिस्तान में सड़कें बंद नहीं हो लापता अफराद के लिए। तो ये जेन्युइन मसला है। इसको जो है ना 40 दिन की तहरीक के साथ ना जोड़े। इसको जो है ना आप स्टार्ट से ले, जिस वक्त जो है ना बलूचिस्तान पर ताकत आजमाई की गई। जी थैंक यू। लापता अफराद कमीशन के जो सरबराह हैं वो भी बलूचिस्तान से होने का दावा करते हैं, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, और फिर सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी अदालतें हैं इन सब का क्या रवैया रहा है आपके इशू के तरफ? देखें, इसके खिलाफ तो यहाँ लापता अफराद के लवाकिन मौजूद है जिनके बहुत से केसेस जो है ना कमीशन ने खुद मुस्तरद किए हैं, और कमीशन पर हमारे साथ साथ जो है ना जितने मिसिंग पर्सन की यहाँ तंजीमें हैं पाकिस्तान में उन्होंने भी एतराज़ात दायर किए। सबसे पहले तो उनका रवैया ये है कि लवाकिन को अरासा किया जाए, उन्हें किसी भी तरीके से टॉर्चर किया जाए कि वो अपने केस से दस्तबरदार हो। ऐसे मुतअद्दिद केसेस हमारे पास है जहाँ जो है ना धोखाधड़ी से जाकिर मजीद की वालदा यहाँ मौजूद है, धोखाधड़ी से उन पर जो है ना स्टाम्प पेपर पे साइन करवाए गए ये कहकर के हम आपके बच्चे को लेकर आएंगे, और उस स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ था कि जाकिर मजीद की वालदा कह रही है कि मेरा बेटा जो है ना दुबई में है। तो इस तरह के बहुत से वाकयात हुए जो कमीशन की सरकर्दगी में किए गए, और लापता अफराद के कमीशन जो है ना मुश्तरका तौर पर, लेकिन आप देखिए कोई रास्ता और है भी नहीं, फिर भी यही लवाकिन जो है ना जाकर वहां पर ही अपना केस जमा कराते हैं। और इनका तरीकाकार ये है कि जो लापता खानदान वहां जाएगा उसको अरासा करेंगे, राउंड टेबल में जो है ना जर्नल होगा, कर्नल होगा, DC होगा, वो क्या करते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं एनफोर्स डिसअपीयरेंस को। वो अपने अदारों से ये सवाल नहीं पूछते हैं कि आपने इस फर्द को लापता किया है, इसकी वालदा यहाँ बैठी हुई है, ये फर्द कहाँ है। वो उल्टा उस वालदा से सवाल करते हैं कि आपका बेटा कहाँ है, आपका बेटा किसी जुर्म में किसी उसने कोई कार्रवाई की है या नहीं की है। तो स्टार्ट से ले अगर आपके इस कानून में, आपके इस मुल्क में जो है ना
जबरी गुमशुदगी जस्टिफाइबल है और आपका कानून जिसमें जो है ना 24 आवर्स के बाद जो है ना लोगों को बाजियाब करना और उनको अदालत में पेश करना, वो शक अगर आप उसको काट देते हैं तो फिर तो ये तहरीकें नहीं होंगी। फिर तो बलोच मान जाएगा कि उसके तमाम फैसले मिलिट्री कोर्ट्स पे हो रहे हैं, उसको मारने वाली रियासत कौन है। तो फिर तो मेरे ख्याल से इस एहतजाजी धरने को GHQ के सामने होना चाहिए। ये GHQ के सामने होना चाहिए, फिर ये मुतालबा उनसे होना चाहिए। लेकिन ये अब ये रियासत पर डिपेंड करता है कि वो अपना फैसला क्या करती है। हमारी अदालतें और सुप्रीम कोर्ट से क्या आपको देखिए, हमारी अदालतें और सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद के बहुत से केसेस आए हैं 2014 में, 2013 में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वाक़ादा वर्डिक्ट दिया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ही जिबरी गुमशुदगियों में मुलविस हैं। तो और हमारे ऐसे सैकड़ों लापता अफराद हैं जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए हैं लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के बहुत सी अदालतें ऐसी हैं जहाँ पे लापता अफराद के खानदान अपने केसेस लिए बैठे हैं, जिन पर सालों से जो है ना सिर्फ एयरिंग्स की जा रही है, लेकिन वो जज उस पर कभी संजीदा नहीं होता है। वो किसी की कोई गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसका फैसला बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन किसी का बेटा जो है ना 14 सालों से जिंदानों में, उसका फैसला नहीं आता। उस पर जो है ना जज साहिबान तारीख पर तारीख देते हैं। मेरा सवाल तो उन्हीं से है कि क्या उन्होंने जो कोट पहना है, जो इंसाफ को वो कसम लेते हैं, क्या वो उस इंसाफ की कसम लेने के बाद शर्मिंदा नहीं होते? क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि वो जो है ना एतराफ करे अपने जो है ना इनकम्पिटेंसी का, एतराफ करे, हमारे सामने एतराफ करे, बलूचिस्तान के सामने एतराफ करे, सिंधियों के सामने एतराफ करे। और यहाँ पे इस शहर इक्तदार में भी ऐसे लोग हैं जिनको गुमशुदा किया जाता है, उस हर शख्स से एतराफ करे जिसका जो बुनियादी हक है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। उस डिफेंड को रोंदा गया और इन अदालतों के सामने रोंदा गया और इन अदालतों ने जो है ना कोई किरदार अदा नहीं किया। ये बात अगर बलोच कर रहा है, ये तल्ख बात जरूर है, लेकिन हकीकत है। इस बात को जो है ना बलोच के अलावा और कर भी नहीं सकता, क्योंकि बलोच ने जो है ना वो जख्मे खाई है, वो लाशें उठाई है ना, कि अब वो हर कीमत में जो है ना अपनी बात को सीधी रखेगा सबके सामने। यहाँ पर हम कोई दो राय नहीं रखेंगे। हम 12 कह चुके हैं कि पाकिस्तान की एजेंसीज हमारी नस्ल खुशी कर रहे हैं। कोई भी दरमियान में कोई वो नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, हम मजलूम कौम है और वो जालिम है जो हमारे वसाइल से अपनी ताकत आजमाई कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। थैंक यू।